welcome to the Team Revolution. So today we are going to learn about IC 555. जब भी हम ये टर्म सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लाइक व्हाट इज IC 555, व्हाई इट इज कॉल्ड IC 555, व्हाट आर इट्स यूजेस, हाउ इट वर्क्स, व्हाई इट इज सो पॉपुलर. To know the answer of all these questions, you have to watch this video till the end. It is so much interesting to know. So moving towards our first question, which is why it is called IC 555. जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 3 5 के रजिस्टर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से इसका नेम आया है IC 555. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज IC 555. The IC 555 is an integrated chip or an integrated circuit. It has 8 pins. In the figure, it is shown that a pin number 1 is ground. इसका मतलब है कि जब हम जो भी वोल्टेज मेज़र करना चाह रहे हैं आईसी में वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेट इज़ 0 वोल्ट. सेकेंड पिन इज ट्रिगर पिन. जैसा कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ट्रिगर पिन कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट है. इसका मतलब अगर हम इनपुट 0 देंगे तो वो 1 कर देगा, अगर हम 1 देंगे तो वो 0 कर देगा. एंड दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप. अब जो आउटपुट है टाइमर का वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कितना एम्पलीट्यूड की ट्रिगर पल्स दे रहे हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पिन 3 विच इज आउटपुट टर्मिनल. एज द नेम साउंड आउटपुट टर्मिनल, दैट इज हमें इधर इस पिन पे आईसी का आउटपुट मिलेगा तो हम इस पिन को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. नाउ कम्स पिन नंबर 4 विच इज नोन एज रीसेट पिन. एज वी सी रीसेट पिन इज कनेक्टेड टू द फ्लिप फ्लॉप. इट इज यूज्ड टू रीस्टार्ट द 555 टाइमिंग ऑपरेशन. हम नेगेटिव इम्पल्स अप्लाई करते हैं इस पिन में सो डैट इट कैन बी रीसेट, और फॉल्स सिग्नलिंग से बचने के लिए हम इसे VCC से कनेक्ट कर देते हैं. Now pin number 5 which is also known as a control pin. In this pin we apply the external voltage. इस पिन पे हम पोटेंशियोमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें वेरिएबल वोल्टेज मिलता है. जो कंट्रोल पिन होती है वो हमारे आउटपुट वेवफॉर्म को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ ये थ्रेशोल्ड और ट्रिगर लेवल को भी कंट्रोल करती है. In case if we are not using this pin, then we have to connect this pin to the ground terminal through 0.01 microfarad capacitor to avoid any noise voltage. Pin number 6 which is threshold terminal. ये पिन कंपैरेटर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट होती है. The function of this terminal is to compare the voltage between the voltage applied by us and the reference voltage. अब हम कितना एम्पलीट्यूड का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लिप फ्लॉप के रीसेट स्टेट के लिए. Now our second last pin is pin number 7 which is the discharge pin. In the diagram we can see this pin is connected to the collector of a transistor. Capacitor should be connected between this terminal and ground. जब कलेक्टर का आउटपुट कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है तो उस टाइम इंटरवल में वो आउटपुट को टॉगल करता है, डेट इज बिटवीन हाई एंड लो. Now our last pin is pin number 8 which is known as a supply terminal. A supply voltage of plus 5 volt to plus 18 volt is applied to this terminal. Now our next question is what are the uses of IC 555? So the uses are it is used in different applications such as it is used in oscillators, in pulse generator, in timer, in different timer circuits, in switching circuits, and there are so many applications. Next question is why it is so popular. Firstly, it is used in many applications. Second, it has stable properties. Third, it is so cheap. Fourth, it is easy to learn for the beginners. Fifth, there are so many circuits which we can make through this small IC 555. Now let's take a closer look to the internal circuitry of the IC 555. In the given figure, there are 25 transistors, 2 diodes and 15 resistors. In a block diagram, it consists of
two comparators, a flip-flop, a voltage divider, a discharge transistor, and an output stage. Now there are two comparators. Now the question arises, what are comparators? तो comparators वो circuits होते हैं जहाँ पर दो terminals होते हैं. One terminal is inverting terminal and the other is non-inverting terminal. जब भी हमारा पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज नेगेटिव इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो हमारा आउटपुट 1 होता है, और अगर नेगेटिव इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल से ज़्यादा होगा तो हमारा आउटपुट 0 होगा. अब जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है वो 2/3 VCC अपर कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल को देता है और 1/3 VCC लोअर कंपैरेटर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को देता है. इन मोस्ट एप्लीकेशंस द कंट्रोल पिन इज नॉट यूज. तो हमारा जो कंट्रोल वोल्टेज होता है वो 2/3 VCC के इक्वल हो जाता है. अब अपर कंपैरेटर से थ्रेशोल्ड इनपुट और कंट्रोल इनपुट पिन जो होता है वो कनेक्ट होता है, और आउटपुट ऑफ अपर कंपैरेटर जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप के रीसेट पिन से कनेक्ट होता है. तो अब हम कंपैरेटर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 पिन्स हैं. फर्स्ट इज ट्रिगर, सेकेंड थ्रेशोल्ड एंड थर्ड कंट्रोल पिन. इन तीनों पिन से हम कंपैरेटर के आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं. कंपैरेटर के आउटपुट जो है वो फ्लिप फ्लॉप के R और S के इनपुट से कनेक्टेड है. अगर R 0 होगा और S 1 होगा तो हमारा फ्लिप फ्लॉप का 0 होगा, और अगर R 1 होगा S 0 होगा तो आउटपुट 1. इन केस अगर हमें फ्लिप फ्लॉप को रिसेट करना होगा तो हम आईसी के रिसेट पिन को यूज़ करके फ्लिप फ्लॉप को रिसेट कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ IC 555. To know more about the robotics, electronics, and programming, please subscribe our channel for more updates.